Good morning, Namaste, Jai Hind. Welcome back. So, guys, as we were discussing about Indian Constitution, means we discussed the Constituent Assembly, the structure, the formation of the Constituent Assembly, which was responsible for the formation of Indian Constitution. Under which we discussed that in the Constituent Assembly there were 389 members in total at the time of establishment of this Constituent Assembly. Elections for this Constituent Assembly held in July 1946. 292 members were elected from different states, 4 members from British commissionaries, and remaining 93 members were there from princely states. So ये structure था, formation था Indian Constituent Assembly का. Okay. Now after discussing about that, as the next we are going to discuss about the guiding values of our Indian Constitution. Means हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन में कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स थे जिन्होंने मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था टू गाइड द प्रोसेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, मीन्स विच प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज अ मेजर गाइड. ओके, सो द टॉपिक इज गाइडिंग वैल्यूज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. So guys, let's start our discussion by understanding the overall philosophy of our constitution, that what is our constitution about. यानी हमारा डिस्कशन रिलेटेड है ओवरऑल फिलॉसफी के बारे में कि हमारा संविधान एक्चुअल में क्या है और kiस बारे में बना हुआ है. And these things we can understand by 2 major points. The first one, by reading the views of some of our national leaders who formed this constitution or who played a very important role in the formation of this constitution. Along with that, the philosophy of the constitution itself. Okay, यानी इस एलिमेंट को ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो उसको हम 2 मेजर व्यूज के लिए डेवलप करेंगे. द फर्स्ट वन, व्यूज ऑफ सम ऑफ और मेजर लीडर्स जिन्होंने मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था फ्रीडम स्ट्रगल को लीड करने में. एंड अलॉन्ग विद दैट दे आल्सो प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, अलॉन्ग विद दैट इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू स्टडी द फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ. यानी कॉन्स्टिट्यूशन अपने बारे में क्या कहता है, अबाउट दैट थिंग आल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस. ओके, एंड द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस फिलॉसफी इज द प्रिम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. यानी कॉन्स्टिट्यूशन की खुद की फिलॉसफी जो है, खुद कॉन्स्टिट्यूशन अपनी फिलॉसफी के बारे में क्या कहता है, दैट थिंग आल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर. एंड द बेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ दिस फिलॉसफी इज द preamble of the Indian Constitution. Okay, so let's start our discussion with the first point, means the views of some of our major leaders. Okay, and these views we are going to discuss under the point named the dream and promise. So guys, as we have discussed about the formation of Indian Constitution, Indian Constituent Assembly, in this one thing is very important that I think most of us have noticed, and that is, out of all the sketches of the members related with the formation of Indian Constitution, one person was missing, and that was Mahatma Gandhi. यानी जब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे, जैसा कि हमने ऑलरेडी किया है, देन यू विल फाइंड वन थिंग दैट सम मेजर लीडर्स लाइक महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण,
मोहम्मद अली जिन्ना but not the members of this constituent assembly. वो constituent assembly के member नहीं थे. Okay, but the leaders who were present in the constituent assembly have a clear impact of the vision of Mahatma Gandhi. Means they followed the vision of Mahatma Gandhi at the time of formation of Indian Constitution. In Indian Constituent Assembly में महात्मा गांधी प्रेजेंट नहीं थे, लेकिन बहुत से लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, they all have an impact of the visions of महात्मा गांधी. कि महात्मा गांधी का विजन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कैसा था, उनका क्लियर इम्पैक्ट जो है वो इन लीडर्स के ऊपर प्रेजेंट था. एज महात्मा गांधी wrote in his magazine Young India in 1931 about what he wanted with the Indian Constitution. Means वो भारत का संविधान कैसा चाहते थे. ओके, व्हाट ही वांटेड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू बी, कि भारत का संविधान कैसा होना चाहिए. उन्होंने यंग इंडिया में ऐसा लिखा था और उनके व्यूज को, उनके विजन्स को फॉलो करने वाले बहुत से इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे. सो इन दिस वे द फर्स्ट मेजर पॉइंट, द फर्स्ट मेजर वैल्यू दैट अफेक्ट द formation of Indian Constitution is related with the visions of Mahatma Gandhi. Is that clear? Okay. Now after that, the next major leader whose views affected the formation of Indian Constitution was Dr. Bhimrao Ambedkar, who played a very important role in the formation of Indian Constitution, as he was the chief of drafting committee. Means जिस कमेटी ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट प्रिपेयर किया था, उस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ड्रीम्ड ऑफ an India, means he had a dream of an India which has eliminated inequalities, and the way he wanted to eliminate the inequalities was quite different. यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे, उनका कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. उनके व्यूज़ जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को काफ़ी हद तक इम्पैक्ट किया है. वो एक ऐसे इंडिया को ड्रीम करते हैं जिसमें इनइक्वालिटीज़ प्रेजेंट नहीं हो, जिसमें इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म कर दिया गया हो. ड्रीम लाइक दैट. ओके, और उनके इस ड्रीम में इनइक्वालिटीज़ को एलिमिनेट करने का, उसको अबॉलिश करने का तरीका जो वे है वो क्वाइट डिफरेंट था. इज दैट क्लियर? ओके. Dr. Bhimrao Ambedkar bitterly criticized Mahatma Gandhi. Means he was not in favor with the views, with the ideas, with the conceptions of Mahatma Gandhi. He was in opposition of the views of Mahatma Gandhi. Okay. Now after that, the last and most important leader was Pandit Jawaharlal Nehru, who also played a very important role. And the most famous speech of Pandit Jawaharlal Nehru was given on the midnight of 15 August 1947. Is that clear? Okay. So this is the first point, the dream and the promise. Okay, यानी जो गाइडिंग वैल्यूज हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को गाइड करने के लिए, उसके फॉर्मेशन के प्रोसेस में कंट्रीब्यूट करने के लिए, उसमें सबसे पहला पॉइंट है द व्यूज ऑफ डिफरेंट इंडियन लीडर्स. मतलब हम जब एक डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गेट अ क्लियर आइडिया अबाउट द व्यूज ऑफ द डिफरेंट इंडियन लीडर्स हु वर देयर इन द फ्रीडम स्ट्रगल, हु वर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, व्हाट दे thought about that, what were their views about that, यानी वो संविधान के बारे में क्या सोचते थे. Okay, now after that the next point is the philosophy of the constitution. मतलब इस deep understanding को develop करने में first point तो views of the different leaders now. Now the next one is the philosophy of the Indian constitution. Means what the Indian constitution think about itself, how it explains itself. Okay, so the next point is the philosophy of the constitution. Okay, संविधान की philosophy. So guys,
The different values guided the freedom struggle, inspired and guided the freedom struggle, and in turn nurtured by it formed the foundation of Indian democracy. यानी हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में जो वैल्यूज रही थी, जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल को इंस्पायर किया था, those which inspired the constitution, which guided the constitution, become the base for the foundation of the Indian democracy. यानी ये इंडियन डेमोक्रेसी के फाउंडेशन का आधार था, बेस बना था। ओके, यानी इनसे इंडियन डेमोक्रेसी का फाउंडेशन बना था। ओके, इन दिस वे we can say that our Indian constitution start with a basic statement about the different articles related with the constitution, and this basic statement is referred as the preamble of the constitution. यानी हमारे देश का जो संविधान है वो बेसिक वैल्यूज के एक ब्रीफ स्टेटमेंट के साथ में शुरू होता है, और ये जो स्टेटमेंट है वो संविधान के लगभग हर एक आर्टिकल को इम्पैक्ट करता है, एंड दिस बेसिक स्टेटमेंट इज रेफर्ड एज द प्रिम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि हमने ये प्रिम्बल का आइडिया कहाँ से लिया। एक्चुअली द प्रिम्बल फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से शुरू होता है, एंड फ्रॉम देयर वी टुक एन इंस्पिरेशन, मीन्स मोस्ट ऑफ द कंट्रीज प्रेजेंट एट दैट टाइम इन द वर्ल्ड और formed their constitution at that time, took inspiration from America to add preamble in the constitution. So like with so as with India also, and we have also embedded the preamble of the Indian constitution. Preamble actually में एक बेसिक स्टेटमेंट होता है जो हमारा संविधान वास्तव में क्या करने वाला है, हमारे संविधान में वास्तव में क्या प्रेजेंट है, उसका एक ब्रीफ स्टेटमेंट प्रोवाइड करवाता है। ओके, so now to have a better understanding of the preamble of the Indian Constitution, here we are going to understand the preamble line to line. Okay, so have a look on the board. This is the preamble of the Indian Constitution, in which it is mentioned that we, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Okay, so this is the preamble of our Indian Constitution, और ये जो हमारी preamble है ये clearly mention करती है कि हमारा जो संविधान है वो इंडिया को एक सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाना चाहता है, यानी एक ऐसा गणराज्य जो सॉवरेन है, संप्रभु है, जो सेक्युलर है यानी जो धर्मनिरपेक्ष है, जो सोशलिस्ट है, समाजवादी। इसमें लिखा गया कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को संविधान को आत्मार्पित, अधिनियमित करते हैं, यानी अंगीकृत, आत्मार्पित और अधिनियमित। तो इसमें जो फर्स्ट लाइन से इसमें मेंशन कर दिया गया कि हम हमारे संविधान में एक्चुअल में हमारे संविधान की बेसिक वैल्यू क्या रहेंगी, यानी इसमें हमने जस्टिस भी दिया है, इसमें हमने इक्वालिटी की बात भी कही है, ठीक है, इसमें हमने फ्रीडम की बात भी कही है। अलॉन्ग विद दैट हमने ये भी बताया कि हमारे गवर्नमेंट का विजन क्या होगा, हमारे स्टेट का विजन क्या होगा। सो इन दिस वे प्रिम्बल इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग,
यानी संविधान की फिलॉसफी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्रियम्बल का होता है, क्योंकि प्रियम्बल जो होती है वो संविधान की बेसिक वैल्यूज के बारे में क्लियर एक्सप्रेशन प्रोवाइड करवाती है। इज दैट क्लियर? ओके, सो इन दिस वे वी कैन से दैट the second major point related with the understanding of our constitution or what is our constitution about is the preamble. Now after that the last point is the institutional design. The institutional design of our Indian constitution. So guys, as we have already discussed that as the importance of our Indian constitution, it is not a statement of basic values and basic principles only. On the other hand, it provides a structure, or we can say that an institutional arrangement of the basic प्रिंसिपल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी सिंपल सा पॉइंट है कि अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशंस में जो बेसिक वैल्यूज प्रोवाइड करवाई गई हैं वो सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, उनका एक फॉर्म, उनका एक स्ट्रक्चर है, उनका एक फॉर्म है जो एक इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट के रूप में कॉन्स्टिट्यूशन की द्वारा प्रेजेंट किया जाता है, रिलेटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। मीन्स द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पीक अबाउट द डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस ऑफ द गवर्नमेंट एंड अलग अलग आर्टिकल्स के जरिए वो गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गन्स के बारे में बताता है। ओके, मीन्स इन दिस वे वी कैन से दैट द कॉन्स्टिट्यूशन गिव इट्स बेसिक वैल्यू एंड इंस्टीट्यूशनल arrangements. Okay, and in this constitution we find that how the government will be formed, यानी इसमें हमको मिलता है structure of the government कैसे बनेगी, how the government will be elected, which kind of parts will be there in the government. Okay, what is legislature, what is executive, what is judiciary, and along with that which kind of powers are enjoyed by whom. Okay, means who will enjoy which kind of power, it's all decided by the constitution. Along with that, यानी संविधान जो है वो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर बताता है कि गवर्नमेंट कैसे बनेगी। इसके अलावा ये भी बताता है कि गवर्नमेंट में कौन सी पावर कौन एंजॉय करेगा, यानी किसके पास कितनी पावर होगी, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है। ठीक है, अलॉन्ग विद दैट it also decides that what will be the limits of the गवर्नमेंट, यानी जो गवर्नमेंट है इसकी लिमिट्स क्या होंगी, इनकी पावर्स की लिमिट्स क्या होंगी, एंड दीज लिमिट्स जनरली प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। यानी ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गवर्नमेंट की पावर्स को लिमिट करता है लोगों की, सिटीजन्स की, भारत के नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। अलॉन्ग विद दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ mere paper. Okay, means in this constitution, our constitution framers gave it a realistic look. इसको एक प्रकार से उनके जीवंत लुक दिया गया है, and they all expected the constitution should move as per the changes of the society. यानी सबका मानना था कि संविधान जो है वो लोगों के लिए, लोगों की नीड्स के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। मीन्स whatever the needs of the people should be fulfilled by the constitution, and in this way the constitution should change as per the changes took place in the society and in the environment. यानी जैसा लोगों की थिंकिंग में, जैसा सोसाइटी में चेंज होता है उसी के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन भी चेंज होना चाहिए, मॉडिफाई होना चाहिए। एंड इन दिस वे डिफरेंट काइंड ऑफ अमेंडमेंट्स आर अलाउड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड या अनअल्टरेबल नहीं बनाया है। They gave an option to alter the constitution, the provisions, the articles of the Indian constitution to make it valuable as per the needs of the time. यानी टाइम के अकॉर्डिंग बदलता रहे, वैल्यूएबल बना रहे, उसके बेसिक जो रूल्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं वो हमेशा वैल्यूएबल रहे। इसके लिए संविधान ने अपने आप को बदलने का ऑप्शन दिया है। एंड दीज काइंड ऑफ चेंजेस आर रेफर्ड एज अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन।
अमेंडमेंट या संविधान संशोधन। सेट क्लियर। तो इंस्टीट्यूशनल डिजाइन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सिंपल सा पॉइंट है कि संविधान सिर्फ बेसिक रूल्स को लिखा गया पेपर नहीं है, बल्कि एक रियलिस्टिक लुक देते हुए इसमें इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट यानी जो लॉज बनाए गए हैं उनका इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट किया गया है, जिसमें संविधान जो है वो इन सारे स्ट्रक्चर्स को बनाता है, उनको गाइड करता है। उनके बनाने का जो स्ट्रक्चर है वो संविधान के द्वारा दिया जाता है। संविधान जो रिजिड और अनअल्टरेबल नहीं है, टाइम के अकॉर्डिंग ये बदलता रहे, ये भी जरूरी है ताकि इसकी वैल्यू है, इसकी इंपॉर्टेंस है वो हमेशा बनी हुई रहे। और इसी वजह से संविधान में अलग अलग प्रोविजंस को चेंज करने का प्रावधान भी किया गया है। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सो गाइस, इन दिस वे वी हैव ट्राइड टू बिल्ड अ बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी हमने पढ़ा संविधान के बारे में, संविधान के बनने के बारे में और संविधान की फिलॉसफी के बारे में, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट जो ये रहा कि संविधान जो है वो जैसा बना था वैसा रहेगा, ऐसा नहीं है। संविधान जो है वो अल्टरेबल है, इसको बदला जा सकता है और ये टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को बदलता रहता है। एंड दिस इज डन बाय द पार्लियामेंट ऑफ द country, means by the Parliament of India. Is that clear? So guys, stay tuned for the remaining things related with this book, and about them we'll discuss in the next one. This chapter is over, so thank you very much. Have a nice day. Jai Hind, Jai Bharat.